to the scorecard. Kuldeep There is Rawal a- played very well in Shakti Cup a couple of years ago, and he is certainly a hard hitter of the tennis ball. And the more and more he stays and survives at the wicket, that will be more beneficial to Tip Top Alliance. Indeed, any batsman who sticks onto the wicket and gets their confidence level build it up meanwhile, that would be a dangerous sign for the opposition, for the fielding side, because each and every single time that he faces a ball, the confidence level gradually goes up, and this is what happens when you go for some biggies. This time a low full toss delivery, nicely played this time towards the short covers area. Considered a single on that occasion. Nicely ball. This time again wanted to pull it over to the mid-wicket area. Just got a thick outside edge and rolled it towards the short fine leg area. 1 run to be considered on that occasion. 1 run to end the over after the completion of 2 overs. Score goes to 13 for the loss of 1 wicket. 11 Warriors YBL. You are requested to report immediately near the commentary box and meet Mr. Tanveer for your playing 11, and toss shall happen in the strategic timeout. Osama, this looks very dicey, and they've already lost one of their premier batsmen. So it will be this pair who will have to certainly now carry on for a couple of more overs and provide them with a start that they would have expected and wanted. But on the other hand, Dombivli Grameen Stars getting 10 out of 10 for bowling superbly and bowling into the right areas. Indeed, I totally agree with the fact that you have said. The credit goes to the bowling department, who are not just giving the room to any batsman to score some runs against them. And that is what usually happens. Nicely shot. This time played it towards the long on area. Fielder coming underneath it. And a magnificent monster. This time towards the long on area. Batsman is furious. He's making his intentions very clear. He's not going to settle down anymore. Straight away went over to the best bowler so far in the side, to Sultan, on the very first delivery of his second over. 6 runs. Outside the off stump, and wide signal by the umpire. 1 more extra run added to the scorecard. This is what usually happens, Harish sir, when a batsman gets over to a bowler for a 6. Then certainly the pressure backs into the bowling department. And wide balls coming up like this happens in the over of Sultan. Back-to-back 2 wide balls after getting a 6, isn't it? Yes. And look at umpire Mohammad Rafi. He resembles a bird from Alien, and the way he declares those wide balls are a truly entertaining umpiring experience by umpire Mohammad Rafi from Rajasthan, doing his first NPL this year. Definitely, nowadays it's not only the players who are entertaining the spectators, it's also the umpires who are entertaining the spectators all around the globe. Started off with Billy Bowden in the international circuit, and now it's Mr. Mohammad Rafi, where you can see him. Have a look at the walk that he takes on after the call. Outside the off stump again, wide signal by the umpire. 1 more extra run added to the scorecard. It's all happening here at Sharjah International Cricket Stadium. Soon after, Kuldeep Rawal went on for a 6 on the very first ball of the second over. Sultan
went on for 3 white balls at this point. We can clearly see how the pressure building up on the bowling department now. Outside the off stump again. And yes, indeed, one more white ball signal. Total 4 balls which have been bowled as a wide in this over by Sultan. Nicely bowled this time, wanted to take a quick single. The batsman would have been in a very big trouble if that was a direct hit. But back into the crease safely, 1 run considered on that occasion. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा 10 प्रीमियर लीग 10 PL सीजन 3 में, जो कि शारजा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर हो रहा है और जिसको प्रेजेंट किया गया है पेट्रोमैन इवेंट्स की ओर से। तीसरा सीजन 10 PL का। बहुत ही बढ़िया शॉट, हवा में गेंद जरूर है लेकिन फील्डर भी नीचे मौजूद और एक आसान सा कैच। बहुत ही बढ़िया जजमेंट, काफी अनुभव अपना दिखाते हुए सुल्तान। छक्का जरूर लगा था पहली गेंद पर इस ओवर की, लेकिन विकेट भी चटकाई है, सफलता भी दिलाई है। दूसरी सफलता अपने नाम करते हुए सुल्तान, और चलता किया कुलदीप रावल को। केतन जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जज किया वहां पर, आसानी के साथ देख सकते हैं आप रिप्ले में। देखिए यदि कुछ जरी सी भी ऊंच नीच वहां होती तो संभावना थी कि गेंद बाउंड्री लाइन के पार जाती, लेकिन केतन अपनी नजरों को जमाए रखे और एक आसान सा कैच लिया और रुख दिखाया पवेलियन की ओर कुलदीप रावल को। बढ़िया गेंद, कलाइयों का उपयोग किया, दिशा दिखाई उसे मिड विकेट के क्षेत्र पर। 1 रन बहुत ही तेजी के साथ, दूसरे रन को भी पूरा किया चीते की दौड़ की तरह। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर जरूर है, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दीपक को। इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। तीसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 27, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बढ़िया स्टार्ट दोनों ही पक्षों को मिली है। 2 विकेटें, 2 सफलताएं लेने में कामयाब हुए डोंबिविल ग्रामीण स्टार्स और साथ ही साथ 27 रन स्कोरबोर्ड पर लगाने में भी कामयाब हुई है टिप टॉप अलायंस। So I would request Mr. Tarif Sayyed from 70/70 Sports to be with us. He will be flipping the toss coin of the next match between E-Craft Spiders and 11 Warriors Yash Bisi Alliance. Thank you. कुछ बातचीत जरूर होती हुई प्लेयर्स के बीच, 10 PL दबाव जरूर बनाना चाहते हैं, बल्लेबाजों पर कोई मौका नहीं देना चाहते एक साझेदारी बनने का, और पूरी जीतोड़ मेहनत एड़ी चोटी का जोर वहां पर लगाती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स ने, और न्योता दिया था टिपटॉप अलायंस को बल्लेबाजी करने का, जिसके फलस्वरूप 2 विकेटें अपनी गंवा चुकी है टिपटॉप अलायंस। आनंद और कुलदीप रावल के रूप में। 5 ओवर शेष बाकी।
इस इनिंग में अभी भी। और नाबाद क्रीज पर मौजूद दीपक जो कि सलामी बल्लेबाज टिप टॉप अलायंस के, काफी उम्मीदें जुड़ी हुई, काफी जिम्मेदारी इनके कांधों पर। आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ दीपक का, क्योंकि वहां पर जुड़ गए हैं उनके साथ दिनेश नाकरानी जो कि कप्तान हैं टिप टॉप अलायंस के। छोटी गेंद खेल दिया उसे, वहां पर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और एक आसान सा कैच। सलामी बल्लेबाज काफी हद तक सेट नजर आ रहे थे दीपक, लेकिन जैसे ही गेंदबाजी में परिवर्तन किया है कप्तान ने डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स के और गेंद थमाई थी योगेश को, अपने पूरी जिम्मेदारी पर खरे उतरे हैं योगेश। आते ही पहली सफलता अपने नाम की और सफलता तीसरी दिलाई डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स को। स्कोर पहुंचा 27 पर, 3 विकेट के नुकसान पर टिप टॉप अलायंस। पथिक निजामा आए हैं रिप्लेस करने के लिए दीपक को, लेकिन अभी स्ट्राइक पर मौजूद कप्तान दिनेश नकरानी, काफी कुछ निर्भर करता है इनकी पारी पर। और एक राहत की सांस जरूर ली होगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार्स ने, क्योंकि दोनों ही नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। बहुत ही बढ़िया गेंद, उतनी बेहतरीन तरीके से सीधे बल्ले के साथ खेला उसे और फॉलो थ्रू रीजन में योगेश का बहुत ही बढ़िया फील्डिंग एफर्ट भी देखने को मिला, कोई रन नहीं। चौथा मुकाबला आज के दिन का। छोटी गेंद एक बार फिर से उसी तरीके से खेल जाओ उसे सीधे योगेश के हाथों। जानते हैं अपनी विकेट का महत्व और टीम को भी चाहिए कि एक पार्टनरशिप, एक साझेदारी बने। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपनी पारी को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश, जी तोड़ मेहनत वहां पर कप्तान दिनेश नकरानी की। अच्छी गेंद और कलाइयों का उपयोग किया, उसे खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग क्षेत्र में। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। यही होता है जब आप एक शॉर्ट फॉर्मेट गेम खेलते हैं। 8 ओवर की गेम ये चलती हुई, छक्के और चौके ही नहीं बल्कि आप जितने रन बना सकते हैं सिंगल, डबल्स और ट्रिबल्स में, इसके साथ भी आप अपने स्कोर कार्ड को आगे बढ़ा सकते हैं। और यही किया यहां दिनेश नकरानी ने। टाइम लिया, 2 गेंदें सेट हुई, तीसरी गेंद पर 2 रन बनाए। अच्छी गेंद, कलाइयों का उपयोग किया एक बार फिर से, गैप में ढकेला जरूर है लेकिन चीते की तरह दौड़ पड़े और लपक लिया गेंद को। एक ही रन लेने में कामयाब दिनेश नाकरानी। स्ट्राइक पर आए हैं नए बल्लेबाज पाथिक निजामा। ऑफ स्टंप के काफी बाहर, बहुत ही बढ़िया शॉट, फील्डर मौजूद है वहां पर लेकिन सेफ लैंड कर गई।
2 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। तीसरे रन की भी कोशिश होती हुई वहां पर दिनेश नाकरानी द्वारा, और तीसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हेलो, एक छोड़ पर दिनेश नाकरानी तो दूसरे छोड़ पर पथिक निजामा। इसी 3 रन के साथ अपना खाता भी खोला है पथिक ने, और इसी 3 रन के साथ होता हुआ ओवर समाप्त। चौथे ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा 33, 3 विकेट के नुकसान पर, और मिलेगा स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। और जाते हैं टॉस के लिए। मैं हरीश पांड्या साहब को न्योता देता हूं कि टॉस के लिए वहां पर जुट जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री टीम। दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और इसको अंजाम देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिफ सैयद, जो 70-70 स्पोर्ट्स के निर्माता हैं, और ये वो ब्रांड है जिसको उन्होंने पूरी दुनिया में पहुंचाया। अपनी मेहनत और अपनी लगन से नाम कमाने वाले एक यशस्वी एंटरप्रेन्योर तारिफ सैयद साहब, इनके दस्ते मुबारक से ये टॉस होगा। टीम में है 11 वॉरियर्स YBL और ई क्राफ्ट स्पाइडर्स। 10 PL is the call and 10 PL it is. So, Bhushan Patil, first of all, congratulations for winning the toss. What is the decision that you have taken and why? We will field first. Actually, it's tournament's first game, and always tournament's first game is crucial because we have to adjust the conditions. Bowlers and batsmen, both of the players have to adjust the conditions. So it's very good to good toss to win, and we'll field first and restrict the E-Craft Spider in low total. This year we have started with the review system whereby, you know, any dicey situation or a decision should not be detrimental to the cause of the team. So what are your thoughts on these type of reviews being allowed to the teams in such a fantastic tournament? Yes, sir. Obviously. After all, you are at the international venue and in the international tournament. So any decisions will make a big difference. So review taken by Petroman Events is very good thinking, because one decision can make the whole change in the match. So it's a very good decision. Thanks to Arif Khan and all the Petroman Event management. Last question, as a defending champions, any pressure? It has been long 2 years. So yes, we are here to defend our title. But no pressures. We'll play our natural game and focus on just to play basic cricket, and rest the tournament will is looking forward. So best of luck. All the teams, 16 teams are very good. This year's competition is very hard. So we'll capitalize on all the matches. Thank you. Thank you so much. Let's hear it now from E-Craft Spiders. Very catchy name. I mean, hardly anyone would even think of spiders. And how do you feel getting this name? Yes, this name has given by our owner, Mr. Khalid. He has given this. We are happy to play in his team, so we will do our best. We will give 100% to play a positive cricket in the tournament, and hope we will win the first game of the tournament. One last question. By the time this match is over and you come to bat, you will be batting in the natural light, and probably your opposition, they will bat under the lights. So do you think that this is a blessing in disguise that you will be batting in the natural daylight? This toss was crucial at this time. We will have a ball first, but no problem. We can give a strong total to them. We will score above 75. We will look for above 75 and fight back for that. Thank you, sir. Well, thank you so much, both these keepers. Thank you so much, Mr. Tarif Sayyed. The only thing I can tell about Tarif Sayyed is, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने 70-70 बनाया. Tarif Sayyed, we are thankful to you. So, dear friends, the toss is won by the defending champions, 11 Warriors YBL, and they will be bowling first, and they have invited E-Craft Spiders to bat first. And let's go back to the commentary box where our team is ready to entertain you. Thank you. थैंक यू सर। 10 PL के तीसरे संस्करण में सभी दर्शकों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। मैच चलता हुआ टिप टॉप अलायंस
बनाम डोंबिवली ग्रामीण स्टार, इनके बीच ओवर नंबर 5वां लेके गेंदबाजी के लिए भिवंडी के एक युवा तेज गेंदबाज विवेक शेलार और बल्लेबाजी के लिए दिनेश नकरानी। एक अगली गेंद बड़ा हिट का लगाने की कोशिश थी, गेंद हवा में, कैच छूटता हुआ, एक रन तो जरूर मिलेगा। अच्छी गेंद थी, बहुत समय हवा में भी थी मगर कैच नहीं हो सका। कुणाल जी, इस स्टेज पर ऐसे कैचेस लेने होंगे गेंदबाजी करने वाली टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। ग्रामीण क्रिकेट में काफी कम हद तक ऐसे नजर आता है इस टीम का परफॉर्मेंस, क्योंकि ग्रामीण इलाके से ये टीम आई है। डोंबिवली ग्रामीण स्टार इस बार कुछ अच्छा करना होगा। गेंदबाजी बेहतरीन करते हुए गेंदबाज विवेक शेलार जो खालिंग से बिलोंग करते भिवंडी एरिया के गेंदबाज और काफी स्मार्ट क्रिकेटर है। अगली गेंद बड़ा स्ट्रोक लगाया, सीमा रेखा के बाहर, गेंद को पहुंचाया 6 रनों के लिए, सिक्सर। प्रतीक के बल्ले से निकला यह स्ट्रोक बैट के रेंज में था, उसको मिड विकेट की दिशा में खेला 6 रनों के लिए। स्कोर आगे जाता हुआ 41 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर। एक तरफ डोंबिवली ग्रामीण स्टार, दूसरी तरफ हम देख रहे टीम टिप टॉप अलायंस। अगली गेंद हुक करना चाहते थे, बॉल हवा में और फील्डर को पार करती हुई गेंद सीमा रेखा की तरफ, 4 रनों के लिए चौका। अच्छी बल्लेबाजी प्रतीक निजामा इनकी ओर से इस मैच में, क्योंकि स्कोर रुक सा गया था बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। ओवर में विवेक के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक निजामा। प्रतीक के बल्ले से पिछले 2 गेंद में 2 बड़े स्ट्रोक आते हुए देखने मिले। विवेक कुछ अच्छा करना होगा, लाइन ऑन लेंथ पर गेंदबाजी आपको करनी होगी। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज आपको मौका जो मिला है, इन ग्रामीण खिलाड़ियों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। अगली गेंद पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, फील्डर वहां गेंद को रुकाने में कामयाब। 1 रन की लिया, दूसरे रन की भी कोशिश और दूसरा रन भी यहां लेते हुए प्रतीक के काफी सराहनीय बल्लेबाजी उनके द्वारा यहां देखने मिल रही है। स्कोर में 2 रन से फिर एक बार बढ़ोतरी, स्कोर होता हुआ 47, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर। ये बड़ा ओवर टीम ईक्राफ्ट स्पाइडर्स के लिए, माफ कीजिए टिप टॉप अलायंस के लिए। नेक्स्ट मैच में ईक्राफ्ट स्पाइडर्स खेलते नजर आएगी 11 वॉरियर्स दुबई YBL के खिलाफ। टॉस वहां पर जीता था, कप्तान भूषण ने फील्ड करने का फैसला लिया था। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए प्रतीक निजामा इस मैच में, क्योंकि स्कोरबोर्ड रुक सा गया था 4 ओवर के समाप्ति के बाद, और इसके बाद 5वें ओवर में बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया विवेक शेलार के खिलाफ। टिप टॉप वर्सेस डोंबिवली ग्रामीण स्टार ये मुकाबला। पहले ओवर में महज 3 रन थे स्कोरबोर्ड पर। ये मैराथन ग्राफ यहां पर आपके सामने। सेकंड ओवर में 10 रन आए, तीसरे ओवर में 14 रन, चौथे ओवर में 6 रन और 5वें ओवर में, इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी प्रतीक की ओर से। कुणाल जी, टीम डोंबिवली ग्रामीण जो टीम है वो ग्रामीण इलाकों से आती है। डोंबिवली ग्रामीण में जितने भी गांव है उतने गांव में से एक खिलाड़ी हर एक गांव में से इस टीम में शामिल है। बहुत अच्छा क्रिकेट डोंबिवली में चलता है। स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल स्मृति चषक जैसी टूर्नामेंट भी डोंबिवली से बिलोंग करती है। वहां से ये सभी खिलाड़ी अपने गांव के लिए क्रिकेट खेलते खेलते आज पहुंचे हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में 10PL जैसी विश्व स्तर की क्रिकेट प्रतियोगिता खेलने के लिए। गेंदबाजी में विजय पवार जो आडोली गांव से बिलोंग करते हैं, गेंदबाजी के लिए तैयार। आज मौका जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। कवर पॉइंट की दिशा में एक बेहतरीन स्ट्रोक, लाजवाब दिनेश नाकरानी के बल्ले से। अच्छा स्क्वायर ड्राइव यहां पर दिनेश नाकरानी के बल्ले से, बिल्कुल नजरों के नीचे खेला इस स्ट्रोक को 4 रनों के लिए। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये एक बेहतरीन 10PL चौका बल्लेबाज दिनेश के बल्ले से। दिनेश
क्या फुटवर्क था कुणाल जी, लाजवाब फुटवर्क। अगली गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा। स्कोर में 1 रन से बढ़ोतरी, स्कोर जाता हुआ 52 पर। 10PL में सभी दर्शकों का स्वागत है। यूट्यूब के जरिए भी 70 स्पोर्ट्स पर बहुत बड़ी मात्रा में इस मैच का आनंद, इस टूर्नामेंट का आनंद दर्शक ले रहे हैं। उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और लेके चलते हैं आपको इस प्रतियोगिता की तरफ। शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में खेली जा रही 10PL। अगली गेंद फॉलो थ्रू में अड़ाने की कोशिश तो जरूर दी, 1 रन जरूर हासिल करेंगे। अच्छा प्रयास विजय इस गेंदबाज का, मैं तो कहूंगा इस गेंद पर इसका विजय था। 12 रन पर ओवर से अगर खेलते जाएंगे तो 83 तक पहुंचा जा सकता है इस मुकाबले में डोंबिवली स्टार के खिलाफ टिप टॉप अलायंस। अगली गेंद थोड़ी सी धीमी गति से की थी, फुल टॉस थी, ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला। मिड विकेट के फील्डर वहां जब तक आते थ्रो कर दे 1 रन मिलेगा। स्कोर में 1 रनों से बढ़ोतरी। आज हर एक खिलाड़ी को एक बड़ा मौका मिला है विश्व स्तर का क्रिकेट खेलने का, विश्व स्तर के स्टेडियम में खेलने का। ऐसा स्टेडियम जिस स्टेडियम के नाम 240 वनडे इंटरनेशनल खेलने का एक रिकॉर्ड है, वहाँ एक ऐतिहासिक जगह पर क्रिकेट आज खेलने का मौका इन सभी खिलाड़ियों को जो गली क्रिकेट खेलते थे। अगली गेंद पॉइंट की दिशा में, बेहतरीन फील्डिंग। मयूर दातिलकर, बेहतरीन फील्डिंग उनके द्वारा। कुणाल जी 3 रन तो बचा लिए अपने टीम के लिए। रन रोकने का काफी बढ़िया प्रयास वहां पर मयूर तातिलकर इनकी ओर से। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 55, 3 विकेट के नुकसान पर टीम टिप टॉप अलायंस डोंबिवली स्टार के खिलाफ खेलते हुए इस मुकाबले में। विजय दिनेश नकरानी के लिए। और काफी प्रभावित किया इस गेंद पर दिनेश, जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे उनको वापस लौटना होगा। विकेट का पतन। एक्शन रिप्ले इस गेंद का, पूरी तरह से लाइन मिस की बल्लेबाज दिनेश नाकरानी ने और यहां पर विकेट अपना गवाया। 55 के कुल योग पर रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर 55। टीम टिप टॉप अलायंस इस मैच में 6 ओवरों का खेल यहां से समाप्त होता हुआ। एक टीम मीटिंग यहां पर ले रहे हमारे कप्तान। यहां पर चर्चा चलती हुई टीम मीटिंग में कि यहां से क्या स्ट्रैटेजी होगी टीम की। प्रतीक निजामा 8 गेंदों में 18 रन, शुरुआत काफी अच्छी यहां पर दी थी। बल्लेबाज दीपक गढ़वी 11 गेंदों में 13 रन। और उसके बाद अगर देखा जाए मिडिल ऑर्डर में रेगुलर इंटरवल में विकेट यहां पर चटकाई गेंदबाजी करते समय टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार ने। केजू मुंडे 1 ओवर 10 रन। सुल्तान खान जो एक अच्छे गेंदबाज है, उनके खाते में 2 विकेट 17 रन उन्होंने खर्च किए। विजय पवार जिन्होंने 1 ओवर यहां पर पेश किया, 1 विकेट 8 रन जो अभी अभी उन्होंने ओवर किया, ओवर नंबर 6। विवेक शेलार थोड़े से महंगे साबित हुए, पहले ओवर में उन्होंने 14 रन यहां पर खर्च किए। लेकिन मैं यहां पर प्रशंसा करूंगा योगेश मात्रे की, जिन्होंने 1 विकेट लिया अपने निजी 1 ओवर में और महज 6 रन उन्होंने खर्च किए। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन किया और विकेट का पतन होता हुआ रनआउट के तौर पर। जी हाँ, इस ओवर में थोड़ा सा दबाव महसूस करती हुई टीम टिप टॉप अलायंस जिस तरह से गेंदबाजी करते हुए अपने स्क्रीन पर विवेक शेलार काफी नीट एंड क्लीन हार्म एक्शन है उनका, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे और पूरी तरह से चूके बल्लेबाज गेंद शरीर से टकराई और इस बार अंडर आर्म थ्रो सीधा स्टंप पर जाकर लगता हुआ आज के पारी का यहां पर खात्मा होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी और इन एक्शन जो हमारे अंपायर, हमारे ऑफिशियल्स काफी अच्छा यहां पर परफॉर्मेंस देते हुए इस 10PL सीजन 3 में। ग्रामीण क्रिकेट डोंबिवली ग्रामीण स्टार इस मैच में शिरकत कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। जब उनका गांव के लिए मैच होता है कुणाल जी, पूरा गांव उनका मैच देखने आ जाता है। मगर आज शारजा में मैच है, मगर
70 स्पोर्ट्स पर यूट्यूब पर पूरा का पूरा गांव इस मैच को जरूर देखता होगा। जी हाँ, मैं तो इसके लिए प्रशंसा करूंगा ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट उनके एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विनोद रतन पाटिल इनकी, क्योंकि ये टीम उनके द्वारा यहाँ पर भेजी गई है। एक बड़ी टीम इस बार खेलती हुई जो स्वर्गीय रतन बुआ पाटिल रतन बुआ पाटिल ट्रॉफी के आयोजनकर्ता के रूप में हमें उन्हें देखते हैं। अनंता पाटिल और सभी टीम क्या बढ़िया यहाँ पर एफर्ट लगाते हुए कवर्स की दिशा में खेलने की कोशिश, 1 रन तो जरूर मिलेगा। शॉर्ट कवर में फील्डर के हाथों में गेंद जाती हुई 1 रन से स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी, स्कोर जाता हुआ 61 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ टिप टॉप अलायंस टीम। सात ओवर का ये खेल यहां से समाप्त होता हुआ 61 5 विकेट के नुकसान पर टीम टिप टॉप अलायंस इस मुकाबले में प्रतीक 11 गेंदों में 22 रन, लगभग स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए तो काफी अच्छा वहां पर मेंटेन करते हुए अपनी टीम के लिए। हितेंद्र जो नए बल्लेबाज जुड़ चुके बल्लेबाज प्रतीक निजामा के साथ में, बस आखिरी ओवर में अब यहां से बड़े स्ट्रोक की जरूरत है टीम टिप टॉप अलायंस के लिए। टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ प्रोजेक्टेड स्कोर पर अगर नजर हम डालेंगे तो करंट रन रेट से अगर इस बार ये टीम खेलती है तो 70 रन बना सकती है। 8 रन पर ओवर से अगर खेलती है तो 69 रन, 10 रन पर ओवर से अगर यहां से ये खेल चलता है तो 71 रन, 12 रन पर ओवर से यहां से अगर बैटिंग करते नजर आएंगे दो बल्लेबाज तो 73 रन। ये 73 रन का ये आंकड़ा काफी अहम हो सकता है 8 ओवर के इस मुकाबले में। चंदू जी, विजय पवार गेंदबाजी के लिए दाखिल होते हैं जो आडोली से बिलोंग करते हैं। देखते किस तरह इस आखिरी ओवर में उनके द्वारा गेंदबाजी होती है। बल्लेबाजी के लिए पथिक और हितेंद्र आखिरी ओवर इस पारी का। अच्छी गेंद ब्लॉक होल में करना चाहते थे, सामने की दिशा में इस गेंद को खेला। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी ने बहुत अच्छा थ्रो केतन मात्रे द्वारा जो वाकलन से बिलोंग करते हैं। कुणाल जी, बहुत अच्छा लगता है जब इन सब का वाकलन, खंबालपाड़ा, आगासन, मोठा गांव, ये सब उसरघर, इन सब खिलाड़ियों को आज हम लोग इंटरनेशनल वेन्यू पे देख रहे हैं। गांव के नाम से इन खिलाड़ियों को पहचाना जाता था। इस बार इंटरनेशनल स्टेडियम में खेलने का मौका उन्हें मिला और अब तक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है ग्रामीण के इन खिलाड़ियों ने इस 10PL सीजन 3 में। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, हवा में गेंद, लॉन्ग ऑफ के जानिब गेंद, विकेट का पतन। पथिक आउट होकर पैवेलियन की तरफ लौटे। पथिक निजामा जिन्होंने 11 गेंदें खेली, 22 रनों की एक बेशकीमती पारी अपनी टीम के लिए खेली और लॉन्ग ऑफ की जानिब कैच देकर वापस पैवेलियन की तरफ लौटे। डेथ ओवर में मैं तो कहूंगा ये सबसे बड़ा झटका टीम को लगता हुआ, क्योंकि सेट बल्लेबाज थे पथिक निजामा, अच्छा खेल भी रहे थे, लेकिन इस बार उनको जाना होगा डगआउट की ओर। और गेंदबाज विजय की मैं प्रशंसा करूंगा। पहले ओवर में महज 8 रन उन्होंने खर्च किए थे, 1 विकेट उनके खाते में था। दूसरे ओवर में 2 गेंदें अब तक डाल चुके गेंदबाज विजय, उन 2 गेंदों में उनके खाते में 1 विकेट। तो बेहतरीन गेंदबाजी चलती हुई टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार, इनकी ओर से आखिरी ओवर में डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हुए विजय पवार। सुरेश तमिल अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश कामयाब रही, गेंद को भेजा 6 रनों के लिए। 10PL सिक्सर। बस ये स्ट्रोक तो लाजमी था इस गेंद पर, क्योंकि रडार में गेंद थी, भेज दिया इस गेंद को वाइटिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। फिर एक बार बड़ा हिट मिड विकेट की दिशा में और एक सिक्सर आता हुआ हितेंद्र की बल्ले से टिप टॉप अलायंस के लिए।
काफी महत्वपूर्ण रन है कुणाल जी, ये स्लॉग ओवर्स में बैक टू बैक 2 छक्के इस बल्लेबाज ने लगाए। रन आना जरूरी था टीम बल्लेबाजी करते समय टिप टॉप अलायंस के लिए, और वो रन आते हुए इस ओवर में पहली 2 गेंदों पर महज 1 रन, लेकिन उसके बाद 2 गेंदों पर 2 लंबे छक्के जड़ चुके बल्लेबाज हितेंद्र। सराहना करनी होगी इस बल्लेबाज की, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। पथिक के आउट होने के बाद स्कोर को जो ग्राफ है वो नीचे नहीं आने दिया, बल्कि और छलांग लगाई उसने। बैक टू बैक 2 छक्के हितेंद्र की बल्ले से, जिन्होंने 4 गेंदें खेली और 14 रन अब तक बनाए। विजय की ये गेंद पॉइंट की दिशा में खेलने की कोशिश, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, दूसरा रन भी चुरा लेंगे और दूसरा रन लेते हुए रन आउट के तौर पर आउट होकर वापिस। इस बार स्ट्राइक लेने का प्रयास था हितेंद्र का, और उसी के लिए 2 रन चुराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन थ्रो काफी सटीक था। नॉन स्ट्राइकिंग एंड की तरफ सुल्तान, जिन्होंने पिछले सीजन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाई थी अपनी टीम के लिए। रन आउट के तौर पर बल्लेबाज सुरेश तमिल, इनको जाना होगा पेविलियन की ओर। अच्छी गेंदबाजी, मैं तो कहूंगा 2 छक्के जड़ने के बाद इस बार ट्रैक पर विजय पवार। विजय फुल टॉस, सामने की दिशा में खेलने की कोशिश, और एक बड़ा स्ट्रोक आता हुआ, खराब गेंद और सही नसीहत 6 रनों के लिए। मैंने कहा था ट्रैक पर आते हुए गेंदबाज, मैं तो अब कहूंगा पूरी तरह से ट्रैक के नीचे जाते हुए विजय पवार की ये गाड़ी, और इसी के साथ ये लंबा छक्का आता हुआ आखिरी गेंद पर विजय पवार। इनकी गेंदबाजी पर बल्लेबाज हितेंद्र जाडेजा के बल्ले से क्या अच्छी बैटिंग यहां पर पेश की है हितेंद्र जडेजा ने। शुरुआत काफी बढ़िया दी थी दीपक गढ़वी ने, 11 गेंदों में 13 रन, 9 गेंदों में 10 रन दिनेश नाकरा ने, उनके साथ पथिक ने अच्छा यहां पर बैटिंग में परफॉर्मेंस दिया अपनी टीम की ओर से। और डेथ ओवर में हितेंद्र जडेजा महज 6 गेंदों में 21 रन। कुणाल जी, एक अच्छा और आना चाहिए था स्लॉग ओवर्स में टीम टिप टॉप के लिए, और वो स्लॉग ओवर्स में बहुत बढ़िया बैटिंग देखने मिली। केजू मुंडे, जिन्होंने पहला ओवर किया, 1 ओवर किया था, 10 रन खर्च किए। सुल्तान कामयाब रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, 17 रन खर्च किए। विजय पवार 2 ओवर में 28 रन। विवेक शेलार 2 ओवर, काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी देखने मिली विवेक शेलार द्वारा, विकेट जरूर नहीं मिला, 20 रन। और योगेश म्हात्रे, जो पारी के सबसे सफल गेंदबाज रहे, 1 विकेट निकाला, 6 रन खर्च किए। 81 पे 7 जीतने के लिए 82 रनों की जरूरत। तुझे बुलाया, ग्राउंड में है तुझे खिलाया, चल अब तू भी खेल दिखा दे, अपने नाम का सिक्का जमा दे, छक्के चौके आज लगा दे, मैदान में तू धूम मचा दे, देखेंगे अब तुमको सारे, वसीम भाई भी साथ हमारे,
थैंक यू। टिप टॉप अलायंस के खिलाफ डोंबिवली ग्रामीण स्टार 82 रनों की जरूरत। और इस मैच के दूसरे सत्र का आंखों देखा हाल बताने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेरे काबिल दोस्त महाराष्ट्र के एक जाने माने कमेंटेटर कुणाल जी दाते। थैंक यू चंदू जी। 82 रनों का लक्ष्य यहां पर होगा। दिनेश नाकरानी करेंगे गेंदबाजी। पारी का ये पहला ओवर दूसरे सत्र का। टारगेट है 82 रनों का। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नीलेश मात्रे टीम के कप्तान करेंगे कप्तान सामने गेंदबाजी। तो एक अच्छा बैटल होगा। टीम के कप्तान के खिलाफ टीम का कप्तान इस बार गेंदबाजी करते नजर आएंगे। दिनेश नकरानी नीलेश मात्रे। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे ऑन साइड की जानिब, लेकिन यहां पर पूरी तरह से बीट कर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। अच्छी गेंदबाजी दिनेश नकरानी युगांडा से यहां पर पहुंचे हैं इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए। दिनेश नकरानी टीम के कप्तान। शॉर्ट बॉल आड़े बल्ले से खेल दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक रन यहां से जुड़ता हुआ। यहां से पारी की शुरुआत करते हुए बल्लेबाज नीलेश मात्रे।
लक्ष्य काफी बड़ा उनके सामने 82 रनों का, लेकिन इस प्रतियोगिता में 102 रनों का टारगेट जो इंडोर राइडर्स ने यहां पर चेस किया था, तो मैं तो कहूंगा यहां पर कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं आपके साहस से, और उसी साहस से आपको खेलना होगा। इस मैच में केतन मात्रे नए बल्लेबाज अंपायर की ओर से गार्ड लेकर अपने इनिंग की इस बार शुरू करते नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से इस बार एंगल बनाकर गेंदबाजी करते नजर आएंगे गेंदबाज दिनेश नाकरानी। अच्छी गेंद, टप्पा गिरकर एक स्लो बाउंसर यहां पर नजर आया और इसी बाउंसर ने भेजा बल्लेबाज केतन मात्रे को डगआउट की ओर। कुणाल जी, इस गेंद को कुणाल जी थोड़ा सा धीमी गति से किया और बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, टाइमिंग मिस हुआ और केतन को वापिस लौटना पड़ेगा आउट होकर। नहीं, काफी गलत स्ट्रोक था क्योंकि इस बार पहली मन बनाया था केतन ने कि ऑन साइड की जानिब इस स्ट्रोक को खेलना है, स्लोर बाउंसर को पढ़ नहीं पाए और पूरी तरह से चूंकि बल्लेबाज केतन मात्रे गोल्डन डक का यहां पर शिकार होते हुए अपने पवेलियन की ओर। एक पर एक टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। सर यही दिनेश है जो कल भारत बनाम पाकिस्तान मैच में खेलते नजर आएंगे। विश्व का सबसे बड़ा मुकाबला होगा टेनिस क्रिकेट में, भारत बनाम पाकिस्तान। ये चले दिनेश नाकरानी, अच्छी गेंदबाजी दिनेश नाकरानी इनकी ओर से मिड ऑन को बीट कर गेंद जाती हुई वाइडिश लॉन्ग ऑन की ओर। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, एक रन जरूर जोड़ता हुआ नीलेश मात्रे इनके खाते में। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2। पहला झटका टीम को यहां पर लगता हुआ केतन मात्रे जो गोल्डन डक का यहां पर शिकार हुए थे। गेंदबाज दिनेश नाकरानी इनको यहां पर पहली सफलता मिलती हुई। तुषार पाटिल नए बल्लेबाज, लेदर क्रिकेट काफी अच्छी तौर पर यह खेलते हैं तुषार पाटिल। राउंड विकेट से अंदर आती हुई गेंद को सम्मानित यहां पर करते हुए तुषार, 9 रन। अच्छी गेंदबाजी दिनेश नाकरानी की, पहले ओवर में महज 2 रन यहां पर खर्च करते हुए 1 विकेट उनके खाते में। पावर प्ले में गेंदबाजी करना अपने आप में एक अच्छा स्पेल यहां पर पेश करते हुए दिनेश नाकरानी। तेज गेंद, तेज गेंद को तेज जवाब इस बार देते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। मिड ऑन के फील्डर ने यहां पर तेज दौड़ लगाते हुए इस गेंद को कैच किया। बल्लेबाज तुषार पाटिल बैक टू द पेविलियन। डोंबिवली ग्रामीण स्टार को यह दूसरा झटका इस ओवर में, वहां पर कैच योगेश ने लपका। कुणाल जी, सराहना करनी होगी इस फील्डर की, मिड ऑन में खड़े थे, पीछे 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 गए और इस कैच को लपका। अपने टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कैच। कैचेस विन द मैचेस, हमेशा से हम कहते आ रहे। 0 रन इस बार सिल्वर डक का शिकार होते हुए बल्लेबाज तुषार, क्योंकि 2 गेंदें उन्होंने यहां पर फेस की। पहले बल्लेबाज थे गोल्डन डक का शिकार हुए थे बल्लेबाज केतन मात्रे, 2 गेंदों में महज 0 रन। बल्लेबाज तुषार पाटिल इनके खाते में। नीलेश मात्रे 3 गेंदों में 2 रन। कुल स्कोरबोर्ड 2 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। 82 रनों का लक्ष्य। आडिवली के विजय पवार इस बार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। नीलेश मात्रे इनके साथ। टारगेट काफी बड़ा सेट हो चुका है टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के। थैंक यू कुणाल। शहनशाह वॉरियर्स, टीम शहनशाह वॉरियर्स, आप अपने हेड शूट के लिए कांटेक्ट कीजिए। शहनशाह भाई पूरी टीम को लेके फोटोग्राफी के लिए आ जाए। थैंक यू। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर 82 रनों का टारगेट, 82 रनों का पीछा करने उतरी है टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। इस बार पेवलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे अफजल सिंधी। इन कटर पिचिंग होने के बाद काफी हद तक अंदर की तरफ यहां पर गेंद घूमती हुई नजर आई। यही तो कला इस गेंदबाज में। अफजल सिंधी
एक बड़े गेंदबाज है चंदू जी, जिस तरह से पहली गेंद पर उन्हें घुमाव मिला, क्षमता है उनमें गेंद को अंदर की तरफ लाने की, गेंद को घुमाने की, और इसीलिए एक बड़े गेंदबाज कहे जाते हैं। ये गेंद बस पहली गेंद की क्लोन गेंद थी। पिचिंग होने के बाद थोड़ी सी अंदर की ओर ये घूमती हुई बैकफुट पर जाकर दिशा दी बल्लेबाज विजय पवार ने थर्ड मैन की ओर। एक रन यहां से जोड़ता हुआ उनका खाता खोलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 3। 40 गेंदों में यहां पर 79 रन बनाने टीम को जीतने के लिए डोंबिवली ग्रामीण स्टार को इस मैच में टिप टॉप अलायंस के खिलाफ। पारी का चलता हुआ ये दूसरा ओवर हमारे पेविलियन एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे गेंदबाज अफजल सिंधी। फील्ड प्लेसमेंट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर। इसी के साथ दायरे में फील्डर मिड ऑफ, शॉट कवर पॉइंट एंड बैकवर्ड पॉइंट। रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज नीलेश, पूरी तरह से चकमा दिया, गेंद ने रन आउट का चांस था नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। डायरेक्ट हिट करने का प्रयास विकेट कीपर इनकी ओर से, लेकिन इस बार बचे मैं तो कहूंगा बल्लेबाज विजय पवार। अच्छी गेंदबाजी दूसरे ओवर में अफजल सिंधी। पावर प्ले का ये दूसरा ओवर चलता हुआ 82 रनों का एक बड़ा टारगेट चेस करने उतरी है टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नीलेश टीम के कप्तान। फिर से एक बार अपना तांस चेंज करते हुए इस बार ये कैच, और एक बेहतरीन कैच। कैचेस विन द मैचेस हमेशा से कहा जाता है, और इस बार बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी सामने की ओर गोता लगाकर इस गेंद को उन्होंने कैद किया अपने हाथों में। सुरेश तमिल, जर्सी नंबर 99, ये स्विच हिट लगाने का प्रयास, और क्या एफर्ट वहां पर सुरेश तमिल। जी हां जनाब, आपने तो एक बेहतरीन कैच वहां पर लपक लिया अपने टीम के लिए। बेहतरीन कैच सुरेश तमिल द्वारा, और बेहतरीन गेंदबाजी भी कुणाल जी मैं कहूंगा। दोनों गेंदबाजों ने अब तक किए, दिनेश नकरानी हो और अफजल सिंधी, जो जाने जाते हैं ऐसी तरह की गेंदबाजी के लिए, विकेट लेने के लिए। आज उनके द्वारा आज भी काफी अच्छी शुरुआत। नीलेश को आउट होकर वापस लौटना होगा। इस बार थोड़ी सी मुसीबत में टीम नजर आती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार। हरीश पंड्या सर ने हमेशा से कहा था कि डोंबिवली ग्रामीण स्टार प्रहार ट्रॉफी जीतकर इस प्रतियोगिता में खेलते नजर आ रही है, और विक्रांत पाटिल ने उस ट्रॉफी में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था अपने टीम की ओर से इन एट नंबर 5। अंडर आर्म क्रिकेट भी बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। अंडर आर्म क्रिकेट जो कल्याण, डोंबिवली, ठाणा, मुंबई पूरे जोन में खेला जाता है, तो उसमें भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी का रहा है। अफजल सिंधी, पटकी हुई गेंद थी, इस बार बॉलर बैक ड्राइव, ब्लाइंडर, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द 10 PL, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। ये कैच तो मानो बार बार देखो, 1000 बार देखो। कुछ इसी तरह से शॉर्ट बॉल थी अफजल की, और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे, लेकिन पूरी तरह से गलत स्ट्रोक का चयन बल्लेबाज विक्रांत पाटिल इनकी ओर से, और फॉलो थ्रू में क्या कैच अफजल का। डोंबिवली ग्रामीण के बैट्समैन जज नहीं कर पा रहे किस तरह कितनी गेंद घूमेगी, कहां जाएगी, और हर एक बल्लेबाज वही गलती कर रहा है, और वापिस पहले पेविलियन के तरफ लौट रहा है। कुणाल जी, ये दूसरा गोल्डन डक का शिकार विक्रांत पाटिल। इससे पहले बल्लेबाज गोल्डन डक पर आउट हुए थे केतन मात्रे, उनके बाद विक्रांत पाटिल गोल्डन डक का शिकार होते हुए इस मुकाबले में, और पूरी तरह से बैकफुट पर टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। मैं तो कहूंगा लक्ष्य काफी बड़ा नहीं, क्योंकि इस प्रतियोगिता में 102 रन सेकेंड मैच में चेस कर चुकी है टीम इंडोर राइडर्स। मयूर दातिलकर एक रिकॉग्नाइज्ड बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में इन एट नंबर 6 अब बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। मयूर दातिलकर ने भी इस साल में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया अपने टीम के लिए, डोंबिवली ग्रामीण स्टार के लिए। मुझे आज भी याद है प्रहार ट्रॉफी की उनकी वो फाइनल मैच में खेली गई इनिंग। पहली गेंद फेस करेंगे, इनसाइड आउट खेलना चाह रहे थे मिड ऑफ की ओर, काफी बढ़िया फील्डिंग, और वहां पर एक रन यहां पर जुड़ता हुआ मयूर दातिलकर का खाता खुलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर
2 ओवर के समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार। सराहना करने होगी दोनों गेंदबाजों की कुणाल जी। कुछ अलग करना होगा बल्लेबाजों को। डोंबिवली ग्रामीण स्टार एक अंदाजा लेना होगा किस तरह से गेंदबाजी हो रही है, उसकी विपरीत स्ट्रोक खेलने होंगे। परिस्थिति के खिलाफ आपको अब बल्लेबाजी तो जरूर करनी होगी, क्योंकि यहां से टारगेट बढ़ता हुआ टीम के सामने, रिक्वायर रन रेट बढ़ता हुआ। पहले ओवर में दिनेश नाकरानी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने फार एंड से की। पहले ओवर में महज 2 रन 2 विकेट उनके खाते में। टिप टॉप परफॉर्मेंस यहां पर चलता हुआ दिनेश नकरानी, जो युगांडा से इस प्रतियोगिता को खेलने के लिए पधारे हैं शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में, जिस ग्राउंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 240 वनडे इंटरनेशनल होस्ट करने का। ये टीम का डगआउट आपके स्क्रीन पर। डोंबिवली ग्रामीण स्टार थोड़े से निराश हताश यहां पर थोड़े से चेहरे आपके सामने, क्योंकि 4 विकेट खो चुकी है टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए डगआउट नंबर 2 टीम टिप टॉप अलायंस काफी शांत। आड़े बल्ले से स्वीप करना चाह रहे थे, स्लॉक स्वीप स्क्वायर लेग में, गेंद हवा में, और इस बार ये 5वां झटका लगता हुआ टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार को 82 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए। इस गेंद को भी थोड़ी सी धीमी गति से करना चाहते थे गेंदबाज दिनेश नाकरानी, और टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद घूमी भी कुणाल जी, और इस गेंद को मिड विकेट की तरफ बड़ा स्ट्रोक में तब्दील करने की कोशिश थी, मगर आउट होकर वापस लौटेंगे मयूर। घुमाव काफी अच्छा था, फील्डिंग काफी अच्छी थी। टीम टिप टॉप परफॉर्मेंस यहां पर चलता हुआ। 2 गेंदों में 1 रन। मयूर तातिलकर इस मुकाबले में कॉट आउट होकर पेविलियन की ओर। पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 3। खुद कप्तान यहां पर गेंदबाजी करते हुए। कप्तान है दिनेश नाकरानी। नए बल्लेबाज इस बार योगेश मात्रे, जो मात्रेपाड़ा के खिलाड़ी है, लेकिन यहां पर बैटिंग आपको करना होगा, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा आपके सामने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से दिनेश रिवर्स खेल दिया इस स्ट्रोक को, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद और एक आसान सा कैच छूटता हुआ। कैच ड्रॉप, 1 रन यहां से जरूर जुड़ेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम डोंबिवली स्टार के खाते में। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 5। अच्छा प्रयास था रिवर्स खेलने का, मगर वहां खिलाड़ी मौजूद थे और भाग्यशाली रहे, एक उनका कैच छूटा। कुणाल जी, भाग्य ने साथ दिया बल्लेबाज का, लेकिन इस बार फिर से एक बार बल्लेबाज को चकमा देकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी दिनेश नाकरानी की। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करते हुए अपने व्यक्तिगत तौर पर महज 3 रन उन्होंने खर्चे इस पूरे ओवर में, वो 3 विकेट उनके खाते में। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया इस गेंद को। डीप बैकवर्ड पॉइंट में टर्न होकर गेंद सीधे वहां के खिलाड़ी के हाथ में जाएगी। तब तक 2 रन यहां पर जुड़ती हुए टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खाते में। पार्टनरशिप यहां पर बिल्ड करना होगा टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार को, क्योंकि बड़ा लक्ष्य उनके सामने, 82 रनों का टारगेट, और वही पार्टनरशिप की तलाश होगी डोंबिवली ग्रामीण स्टार को इन 2 बल्लेबाजों से, योगेश मात्रे और विजय पवार। पटकी हुई गेंद थी, इसे हुक करना चाह रहे थे, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे और बल्लेबाज की पारी का अंत। एक और झटका लगता हुआ टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार को इस मैच में। सराहना करनी होगी दिनेश नाकरानी की, जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, हर एक गेंद को अलग अलग टप्पे पे पिचिंग कर रहे हैं, और काफी धीमी गति से गेंदबाजी जो हो रही है, और विकेट वो चटका रहे। काफी सराहनीय गेंदबाजी। एक अच्छी बात आपने छेड़ी कि यहाँ पर अच्छे टप्पे पर गेंदबाजी करते हुए, हरीश सर हमेशा कहते हैं क्रिकेट में टप्पा और बाहुबली का कटप्पा। अच्छी गेंदबाजी इस बार टिप टॉप अलायंस की ओर से।
डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खिलाफ। 31 बॉल में 75 रन यहां पर बनाने बल्लेबाजी करने वाली टीम को डोंबिवली ग्रामीण स्टार यहां से थोड़ी सी बैकफुट पर, थोड़ी सी ने मैं तो कहूंगा काफी हद तक बैकफुट पर, क्योंकि यहां पर विकेट रेगुलर इंटरवल में उन्होंने गंवाई है। 7 रन पर 6 विकेट का नुकसान टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। पारी का चलता हुआ ये ओवर नंबर 3, नए बल्लेबाज साई शिवाजी शेलार बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। अर्नोल्ड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, एक खबू बल्लेबाज, शॉर्ट बॉल हुक करना चाह रहे थे, काफी तेजी से निकली गेंद बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में। यहां से ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ, 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या 7 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार 82 रनों का टारगेट उनके सामने रखा था टीम टिप टॉप अलायंस ने। लक्ष्य से दूर जाती हुई डोंबिवली ग्रामीण स्टार टीम, कुणाल जी, मगर दमखम दिखाना होगा बल्लेबाजों को। क्यों इतनी दूर हम शारजा स्टेडियम में आए हैं, हमारा गांव का, हमारे टीम का और खुद का नाम करने के लिए, तो उसी अंदाज में स्ट्रोक खेलने होगी जिस अंदाज में वो ग्रामीण के लिए खेलते हैं। नेशनल बल्लेबाजी करनी होगी इसके आगे भी। 3 ओवर के समाप्ति के बाद ये आंकड़े थोड़े से निराश करते हुए टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार को योगेश मात्र महज 2 रन, विजय पवार जो नॉट आउट 2 रन पर खेलते हुए अपने सामने, साई शेलार, उनसे काफी बड़ी उम्मीदें इस टीम को। शॉर्ट बॉल थोड़ा सा इनकटर अंदर की तरफ घुमा लेती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। अच्छी गेंदबाजी राजेश ओवर नंबर 4 में गेंदबाजी करने नजर आते हुए। राजेश नायडू, शॉर्ट बॉल बैकफुट पर जाकर शॉर्ट आर्म पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट की जानिब। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहां से जुड़ता हुआ टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के खाते में, रन संख्या बढ़ती हुई 1 के साथ 8 रन पर। पार्टनरशिप 3 गेंदों में महज 1 रन, विजय पवार 2 गेंदों में 1 रन, साई शेलार, इनसे मैंने पहले भी कहा था कि काफी उम्मीदें है इस शारजा इंटरनेशनल स्टेडियम में। लंबे लंबे छक्के मारने के लिए जाने जाते हैं अपने ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में। इस बार पटकी हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर स्क्वायर लेग की जानिब खेल दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन यहां पर जुड़ता हुआ बल्लेबाज साई शेलार का यहां से खाता खुलता हुआ। रन संख्या 9 रन 6 विकेट के नुकसान पर डोंबिवली ग्रामीण स्टार 27 गेंदों में 73 रन यहां से बनाने हैं जीतने के लिए। गति को पहले ही भाप लिया था, कवच की ऊपर से खेल दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ 10 PL चौका। बल्लेबाजी करने वाली टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार के स्टार बल्लेबाज योगेश विजय के बल्ले से। इसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी। क्यों डोंबिवली से शारजा तक का सफर मैंने तय किया। शॉर्ट बॉल ऑन साइड में पुल कर दिया, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा विजय को। सिंगल के साथ स्ट्राइक को करेंगे रोटेट और सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड बढ़ता हुआ। रन संख्या इस बार 14, 6 विकेट के नुकसान पर 14 रन, 68 रन यहां से बनाने हैं टीम को जीतने के लिए 25 गेंदों में। शॉर्ट बॉल बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया इस गेंद को मिड विकेट की ओर। वहां पर खिलाड़ी काफी तेजी से जाना होगा। 1 रन यहां से जुड़ता हुआ, 2 रन की तलाश और वहां पर पूरी होती हुई बल्लेबाज साई शेलार। रन संख्या 4 ओवर की समाप्ति के बाद महज 16 रन 6 विकेट के नुकसान पर टीम डोंबिवली ग्रामीण स्टार। तो आइए चलते, कमेंट्री बॉक्स में होगा थोड़ा सा परिवर्तन। आइए सुनते स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल दाते, चंद्रकांत शेटे और उसामा। ये हमारे कमेंटेटर भाई है जो आज सुबह से आप लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। मैच की अलग अलग सिचुएशन को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन।
There you see arrival of Shansha. Shansha Warriors. They are going for a photo shoot now after a lunch. And we welcome team from Pakistan who are going to start their campaign today. So the match is a very tense match as of now, 16 for 6, and someone will have to play well. What I want to commit here is that even if you are not able to win the match, at least you can reduce the margin of your loss so that in case if the points table show that the teams are at same point, some net run rate factor can help them. But as of now, they have surrendered themselves to an extent, but these two batsmen, Sai Shelar and Vijay Pawar, they have not given up. They have played some real good shots, and it will be interesting how they will be approaching remaining 4 overs. Score is 16 and the target is 82. So, Abdul Qadir is the new bowler. Abdul Khadir. And batsman facing him is Vijay Pawar. Well, they need one good over of 20 runs and they can be back in the match. They need one loose over. Will they get it? If they get it, will they be able to score runs? Because they have lost 6 of their fantastic batting order batsmen. First delivery, very good pitch of the ball. Well, this team has Afzal Sindhi, who has a bowling action just like Jasprit Bumrah. And then they've got Dinesh Nakrani, who bowled well. Nice release from the hand and hardly anything that Vijay Pawar could have done. Ball is holding on to its line and deviating a touch towards the wicket keeper, and there is no run. 16 for the loss of 6. Over number 5, where Tip Top Alliance posted a total of 81 after being invited to bat. Half-tracker delivery, judging it well, piercing the gap. This will certainly go to the fence for 4, it seems. Yeah, and it is. Brilliant timing and placement. For 6. Things will change, and the only person who can change things is you yourself. And short and wide delivery was placed so well that Vijay Pawar now has taken his team to 20 for 6. One more added. Good throw from the cow corner and a single. 21 for 6, chasing 82. Back-to-back wickets taken by Tip Top Alliance. This time trying to find the gap. Sai Shelar. Oh, what a Midas touch that was. Past the third man fence for 4. $25 for 6. जिसमें है लेकिन सिर्फ प्लेइंग में तो नहीं है जो प्लेइंग में दी हुई है इसमें 57 still required to win the match. Abdul Qadir this time pitching it up. That's what they got to do. End of over number 5. Scoreline 25 for 6. Another 57 runs required of 18 deliveries as the equation becomes more and more difficult.
Dombivli Gramin Stars. Good comeback in the match by Tip Top Alliance in the last 4 overs of the first innings. राजेश कुमार है ना Now the fresh over commences. अभी कौन है 99 नंबर सुरेश तामिल Suresh Tamil. He was part of the team that was runner-up last year. Oh, and that was a golden chance, but ball was there in the air for some time. And fielder at deep third man stops the boundary, single-handed, 26 for 6. Still a long way to go in this match for Dombivli Gramin Stars, DGS. Express delivery, and this time the ball travelled past batsman Sai, collected very well by Deepak Gadvi behind the stumps. 26 for 6. Umpire Mohammad Rafi at the bowler's end and umpire Fayaz Sheikh is at the striker's end. Half tracker ball, but slightly slower. And that's the intelligent piece of bowling. You got to vary your pace. The way my fellow commentator Chandrakant told that Dinesh Nakrani bowled different trajectories on all the balls. And that's what makes you a genius. John Embury started that in Test cricket. 6 different bowls by the off-spinner. Again an express delivery, and this time Sai wanted to go for a heave, and oh, what a throw this is. Deepak Gadvi showing his class as a wicket-keeper and a batsman. And bails are dislodged. Sai Shelar walks back. Seventh wicket gone. A perfect bowling attack in the side of Tip Top Alliance. New batsman is Keju Munde, who is a recognized bowler and would have never thought that he would get a chance to bat today. Suresh Tamil. He is going to bowl to Vijay Pawar. Completely taken by surprise. What a dream over this is for Suresh Tamil. And Suresh Tamil offered a warm vanakkam in Tamil to the batsman. 26 for 7. Oh, this time hitting it hard, and this will go past the fence. We are waiting for umpire's decision, and this will be a flat 6. Good shot. And score now with the 6, 32 for 7. Good hit.
32 for 7 and end of over number 6. 6 ओवर 32 रन और 7 विकेट। दिनेश नाकरानी ने अच्छी शुरुआत करके दी टीम को। अफजल सिंधी ने उसमें रंग भरे और फिर सुरेश तमिल और राजेश कुमार, ये दोनों और इसको बेहतरीन और रंगीन बनाते हुए रंग बिरंगी गेंदबाजी की दुनिया टिप टॉप अलायंस की। अलायंस का मतलब होता है युति, और हर गेंदबाज की एक दूसरे के साथ ऐसी युति है, ऐसी जोड़ी बनी है कि वो एक दूसरे को पकड़कर चल रहे हैं। अफजल सिंधी की ये गेंद क्या टर्न होकर अंदर की तरफ आई। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जाकर सिंधी की कलाइयों को मैं तराशूं, कहीं उसके अंदर बॉल बेरिंग तो नहीं लगा। जिस तरह से गेंदे टर्न करवा रहे हैं। 32 पर 7, अभी भी 50 की जरूरत और गेंदे बची है 11। बिल्कुल जसप्रीत बुमराह की तरह बॉलिंग एक्शन, और यहां पर अब गेंद को रोका था पथिक निजामा ने और विकेट का पतन। पथिक निजामा जिनका थ्रो आया था, और यहां पर एक और विकेट। डायरेक्ट थ्रो स्टंप्स पर आता हुआ, और पथिक निजामा इसके पहले एक बार कैच छूटा था, लेकिन उसके मलाल को कम करता हुआ वो बेहतरीन थ्रो। अफजल सिंधी गेंद का टप्पा, उसकी दिशा, उसकी गति, ये तीनों को गुलाम बना दिया है अफजल सिंधी ने। और गेंद जाकर उनसे पूछ रही है, बताइए मेरे आका क्या करना है। नए बैट्समैन है विवेक शेलार, एक उदयमान खिलाड़ी, और इस प्रतियोगिता में विवेक शेलार, श्रेयस कदम जैसे 2 खिलाड़ियों पर पूरे भारत के क्रिकेट विश्व की नजरें होंगी, क्योंकि बहुत सराहनीय प्रदर्शन किया है श्रेयस कदम। ये 2 युवा खिलाड़ी भारत से अपनी अपनी टीमों के लिए खेलने जा रहे हैं। 32 पर 8। सिंधी की अगली गेंद टप्पा खाकर अंदर की तरफ आई। रविचंद्र अश्विन की स्पिन गेंदबाजी का राज क्या था? तो उनके कोच सुनील सुब्रमण्यम ने बताया कि अश्विन एक ही गेंद को अलग अलग हाइट से करके महारत हासिल किए। इस बार एक और बढ़िया गेंद। बल्लेबाज के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़कर की जाने वाली गेंदबाजी। और 33 पर 8, 82 रनों का पीछा करते हुए अफजल सिंधी अब तक 3 रन देकर 2 विकेटें ले चुके हैं। बहुत ज्यादा टर्न, और 2 रन जरूर मिलेंगे। जो भी मिले दौड़ते रहना चाहिए। जी हां, रन है तो लेना है। जी हां, बिल्कुल सही है। मैच का परिणाम चाहे कुछ भी हो, रन बनाकर हम हार के फर्क को कम तो कर ही सकते हैं, या जीतने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। और इसीलिए करना है तो डरना नहीं, और डरना है तो करना नहीं। 36 पर 8। इस बार जाकर बल्लेबाज विवेक शेलार की छाती के करीब आती हुई गेंद। अफजल सिंधी गेंदों को बहुत अच्छा टर्न करा रहे, एक ऐसा एंगल बना रहे कि मानो ज्योमेट्री का कोई कमजोर विद्यार्थी हो तो उसको अफजल सिंधी की बॉलिंग दिखाई जानी चाहिए, ताकि उसको एंगल क्या है समझाया जा सके। 36 पर 8, और अब आखिरी ओवर का खेल बचा हुआ है। अंपायर मोहम्मद रफी भी अपनी पोजीशन को लेते हुए। अंपायर मोहम्मद रफी का भी चौका देने का अंदाज एक बहुत अलग तरीके से होता है, मानो चक्की पीसी जा रही हो उस तरह चौका देते हैं। और शायद राजस्थान के रानी गांव में बहुत सारी चक्कियों को पिसते हुए देखा होगा कि अब वो उनके दिमाग में प्रिंट हो चुका है। और वो
वो जब चक्की घुमाते हैं तो फिर धर्मेंद्र का वो डायलॉग याद आ जाता है, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। अब आ चुके हैं राजेश नायडू। नायडू की पहली गेंद इस बार मिडिल स्टंप पर आक्रमण रखना चाहा था, इस बार थ्रो हुआ। दिनेश नाकरानी वहां पर अपनी टीम को अच्छा लीड करते हुए लेग बाय। अंपायर मोहम्मद रफी की लंगड़ी पोजीशन, जिस तरह से वो लंगड़ी पोजीशन बताते हैं ऐसा लग रहा है कि ऑल इंडिया लंगड़ी कंपटीशन में भी हिस्सा ले सकते हैं। 37 पर 8। बहुत ही धीमी गेंद राजेश नायडू की, बिल्कुल घुमाया था गेंद को। टेनिस बॉल का क्रिकेट ये ज्यादा जोर से गेंदबाजी करने पर नहीं, परंतु गेंद को घुमाने पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। 37 पर 8। 82 का पीछा करते हुए अब ये मैच का परिणाम केवल दीवार पर लिखा जाना बाकी है। अब देखिए इस बॉल पर कोई भी रन नहीं बना, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया कि अंपायर मोहम्मद रफी वहां क्यों चले गए। क्या दोपहर में ज्यादा खाना खाया था कि टहल रहे हैं? 37 for 8। तो आइए आगे का आंखों दिखाल मैं हमारे मित्र चंद्रकांत से गुजारिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर। औपचारिकता इस मैच की, डीजीएस इस मैच में खराब खेले और दूसरी तरफ टिप टॉप अलायंस काफी बढ़िया प्रदर्शन। बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश और एक विकेट का पतन होता हुआ और इस मैच को जीत लिया टिप टॉप अलायंस ने। काफी बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग और डीजीएस अगले मैच के लिए आपको शुभकामनाएं। दोनों टीमों के खिलाड़ी को आपस में हैंडशेक करना है। 11 वॉरियर्स के शामी भाई, आपको यहां पर कमेंट्री बॉक्स के पास आना है। 11 वॉरियर्स के शामी भाई, क्या बढ़िया कलर है, एकदम पिस्ता कलर। और शामी